to learn human system both in your 11th as well as your 12th standard. You have already learned digestive system in the lesson nutrition. Okay. You have already learned the excretory system in the lesson excretion and osmoregulation. बाकी के जो भी system है, you're going to learn in your 12th standard. See, we are under the heading of chordates. We are vertebrates, we are chordates. So there should be a comparative study between a non-chordate and a chordate. We know that cockroach is a non-chordate animal. And why again a cockroach? Because it is easily available. Okay. It can be easily available. You can see around y'all. It's a pest. It's a household pest. Therefore, the government has selected to study cockroach as a non-chordate, so that you can have a comparative study how the evolution has taken place, what are the systems present in the cockroach, and how the system has been evolved in the due course of time. We will be learning cockroach ka digestive system, so we can compare our digestive system with the cockroach ka digestive system. Similarly, we will be learning the excretory system, nervous system, reproductive system, circulatory system, all system of the cockroach, so that we can understand or we can compare a difference in the system between the non-chordate and the chordate animal. Okay. So before starting with its system, let us know the general point about the cockroach. Where it lives, what is the systematic position of cockroach in the classification, okay, how the cockroach looks externally, and then we will jump to the system. Okay. So as you can see your textbook, you can see the habit and the habitat of the cockroach. So please, whatever point I'm telling you, underline that points. When we talk about the habit and the habitat, cockroaches are omnipresent. Omnipresent का मतलब क्या होता है? Present everywhere. सब जगह हमें देखने के लिए मिलता है. You can see the cockroach in the sink too. मतलब पानी में भी आप देख सकते हो. No doubt they can't swim, but they can live in a wet area also and a dry area also. How they can be present in the sink? The reason is they are having coating, wax coating on the exoskeleton. उनके पंखों के ऊपर, उनके विंग्स के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर एक वैक्स का कोट है, जिसके कारण वो लोग भीगते नहीं है और वो आसानी से गीली जगह में भी रह सकते हैं, सिंक वगैरह में भी रह सकते हैं. तो नाले वगैरह में भी हमें कॉकरोचेस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. कोने वगैरह में तो देखने को मिलते ही हैं. ठीक है. जहां पे भी डार्क एरियाज होता है वहां पर हमें ये कॉकरोचेस देखने के लिए मिलते हैं. सो आई कैन से दैट द कॉकरोचेस आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो. ठीक है. They are present in the damp places also, moist places also. Services का मतलब क्या होता है बेटा? कोना, कोने में रहते हैं. Services to live. It is omnivorous. Now this point is also important. Omnivorous का मतलब क्या होता है? जो दोनों कार्निवरस भी है और हर्बीवरस भी है. मतलब आप कॉकरोच को कुछ भी खाने को दे दो, वो सब खा सकता है. ठीक है. When we were in our college days, in my college days especially, we were used to breed the cockroaches. हम कॉकरोच को ब्रीड करते थे और उनको हम खाने को क्या देते थे? हम उनको जो फिल्टर पेपर होता है, आपने लैब में देखा होगा, ग्रे कलर का फिल्टर पेपर. तो ये फिल्टर पेपर को हम भिगा कर, गीला कर उनको रखते थे, एंड दे यूज्ड टू ईट दैट फिल्टर पेपर इटसेल्फ. एंड देयर इज नो बाउंडेशन. आप उसको कुछ भी खाने के लिए दे दो. ठीक है. भले वो फूड मटेरियल हो, भले वो कोई भी एनिमल का वेस्ट हो, फिर वो पेपर ही क्यों ना हो, वो सब कुछ खा सकता है. इट इज नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? रात में ही नजर आता है. जिसके घरों में कॉकरोचेस होंगे, ठीक है,
तो दिन भर तो आपको इतने शायद नहीं दिखाई देंगे, पर जैसे ही आपने लाइट बंद की और अचानक से आपने लाइट चालू किया तो आपको ढेर सारे कॉकरोचेस नजर आएंगे। दे आर कर्सोरियल ऑल्सो। कर्सोरियल का मतलब क्या होता है बेटा? सो प्लीज नोट डाउन। कर्सोरियल का मतलब होता है दे आर फास्ट रनर्स। बहुत ही फास्ट भाग सकते हैं। कॉकरोच के पास आप धीरे धीरे चल चल के पकड़ सकते हो क्या कॉकरोच को? नहीं। So they are very fast runners also. So cursorial, fast runner, nocturnal, active during night time, and omnivorous means they can eat everything. Have you all noted this point in your book? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let us move on to the scientific name of the cockroach. So the scientific name of the cockroach is very important. Put a star mark over there. Please star mark over here. It is the Periplaneta. Periplaneta americana. We know that the scientific name comprises of the genus name and the species name. We know that the genus name should be written with a capital letter and the species name should always begin with a small letter. Correct now? So Periplaneta is the species name, sorry, genus name, and Americana is the species name. We will understand why it is called as a Periplaneta americana. The Indian version of cockroach, ये जो Periplaneta americana है, इसका origin जो है वो अमेरिका में हुआ है. बाकी के जो आप देख पा रहे हो ब्लैटा ओरिएंटालिस एंड द ब्लैटा जर्मैनिका, ये दोनों मोस्टली इंडियन स्पीशीज है जो हमें हमारे घरों में नजर आते हैं. दैट इज अ ब्लैटा ओरिएंटालिस एंड द ब्लैटा अमेरिका जर्मैनिका. सो दीज आर द कॉमन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया. अमेरिका भी देखने के लिए मिलता है बट इसका ओरिजिन जो है वो अमेरिका में हुआ था, पर बाकी के ये दोनों भी देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. Now important question for the exam is the systematic position of cockroach. Very, very, very important. So put a star mark over there and that is a homework for you. Homework भी है ये आपके लिए. आप habit, habitat लिखोगे और उसके बाद systematic position भी लिखोगे cockroach का. So they belong to the kingdom Animalia. Animalia का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के पास क्या होता है बेटा? सेल वॉल नहीं होता है. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स करते हैं. जबकि सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. मतलब हम या तो प्लांट या तो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर फूड. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. डन. नेक्स्ट इज द फाइलम. फाइलम, जब मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया बताया था उस समय ही मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा के बारे में बताया था. अगेन रिपीटेशन ओवर हियर. ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस. सो जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट. ठीक है. द बॉडी इज सेगमेंटेड. यू कैन सी ओवर हियर. देखो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ एब्डोमेन में. एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट. ठीक है. सो दे आर हैविंग अ सेगमेंटेड बॉडी, है ना. देन chitinous exoskeleton. chitinous exoskeleton. chitinous exoskeleton का मतलब क्या होता है? The body is made up of chitin. करेक्ट है. याद है आपको? मैंने आपको chitin के बारे में बताया था. Do you remember? Anyone? Can you tell me what is this chitin? कोई बता सकता है? क्या बेटा? क्या बेटा? Calcareous exoskeleton. अच्छा, ओके, इट वाज नॉट दैट बेटा. वो कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन आप पॉरीफेरा का बता रहे हो मुझे.
काइटिन का मतलब होता है इट्स अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा? शुगर. ठीक है, सो इट्स अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. ठीक है, और जो कॉकरोचेस रहते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो स्किन मतलब जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काफी हार्ड होता है ना. आप कॉकरोच से क्यों डरते हो? क्योंकि वो एकदम टच करने में हार्ड लगता है, इसीलिए ना. तो वो क्यों लगता है हार्ड? बिकॉज ऑफ दिस ब्राउन कलर का जो है ना, दैट इज दी एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है. पॉलीसेकेराइड का मतलब समझता है ना बेटा आपको? पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर. कॉम्प्लेक्स शुगर से बना हुआ. गॉट इट? ओके. Yes. नाउ क्लास, इट बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा. जो लोग भी क्लास इंसेक्टा में होते हैं उनके पास 6 पांव होते हैं. कितने पांव होते हैं? कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं. यस, दे आर हैविंग 6 लेग्स. जो स्पाइडर है वो भी ऑर्थ्रोपोडा में आता है, पर वो क्लास इंसेक्टा में नहीं आता. प्लीज नोट डाउन. स्पाइडर जो है उसके पास तो 8 पांव होते हैं, 8 लेग्स होते हैं ना. वो भी ऑर्थ्रोपोडा में आता है, बट उसका जो क्लास है वो एरेक्निडा है. एरेक्निडा क्लास में बिलोंग करता है. जबकि एंट हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब इंसेक्टा में आते हैं. जिनके पास भी 6 पांव होते हैं, दे ऑल आर इंसेक्टास. तो हमारा जो कॉकरोच है, यस, वो भी क्या है? उसके पास भी 6 पांव है, देयरफॉर इंसेक्टा. इंसेक्टा. सो स्पाइडर दे का आर क्लास हैविंग क्या? एरेक्निडा बेटा, एरेक्निडा. ठीक है. नाउ next is they are having 2 pairs of wings also. Now this is a very important characteristics. अगर आप birds वगैरह में मैंने आपको पढ़ाया था, तो birds लोगों में, बिचारों में क्या होता है? 4 limb is modified into wings, है ना. उनका जो हाथ है वो मॉडिफाई हो गया है into wings. बट हमारे कॉकरोच का क्या है? कोई भी इंसेक्ट का क्या है? इनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. मतलब इनके पास पैर भी है, जिससे कि जब चाहे ये लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं. और इनके पास विंग्स भी है कि जब चाहे ये लोग उड़ भी सकते हैं. ठीक है. नो डाउट कॉकरोच अपना विंग्स बहुत रेयरली इस्तेमाल करता है. ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो फ्लाई भी कर सकता है ये. तो देर इज नो मॉडिफिकेशन. इसके वजह से जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑन दी अर्थ. सबसे बड़ा. अगर मैंने आपको तभी भी बताया था कि आप सारे प्लांट, सारे एनिमल्स को एक तराजू में रखो, और आप सारे इंसेक्ट्स को, पूरे ऑर्थ्रोपोडन्स को अगर एक तराजू में रखोगे तो भी ऑर्थ्रोपोडन्स ही जीतेंगे, क्योंकि इतने सारे ऑर्थ्रोपोडन्स हैं. तो द रीजन इज they are having the highest adaptability. They can run also, they can fly also. Okay. Now genus क्या है? The genus is Periplaneta. ठीक है. Periplaneta क्यों बोलते हैं? Because they are nocturnal, they are having a straight wings. Yes, अब देखो जरा फोटो में. Yes, अगर आप कॉकरोच को सीधा देखोगे, अभी देखो ये वाला पार्ट, तो क्योंकि हमने इसको ओपन किया इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? उसका विंग्स कैसे हैं? सीधा सीधा विंग्स है ना. जैसे बटरफ्लाई का फैला हुआ विंग्स रहता है, वैसा नहीं है इसका विंग्स. इसका विंग्स कैसा है? सीधा है, स्ट्रेट विंग्स है. ओके. नेक्स्ट इज द स्पीशीज, दैट इज द अमेरिकाना. नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये अमेरिका में ओरिजिन हुआ है. यस, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? अमेरिकाना. नाउ अगेन दिस इज अ फेवरेट क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस. सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ कॉकरोच पूछा जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में. ठीक है, सो मार्क दिस एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब चलते हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे कि वो बाहर से कैसा दिखता है, फिर बाद में हम उसके सिस्टम को समझेंगे. तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पहले हम उसका शेप एंड साइज समझते हैं. तो जब आप लिखोगे ना बेटा, तो आप अलग अलग हेडिंग में लिखना. अभी इसमें कैसे आपको पैराग्राफ वाइज दिया है, पर आप पैराग्राफ वाइज नहीं लिखोगे. कैसे लिखोगे?
लिखोगे हेडिंग एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और फिर हेडिंग लिखोगे शेप। शेप का क्या 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 है वैसे लिखोगे, फिर लिखोगे साइज। समझा मैं क्या बता रही हूँ? ओके चलो, तो जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, वो आप नोट डाउन करते जाओ। कॉकरोच हैज इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब कैसा है बेटा? लंबा है, इलोंगेटेड है, और कैसा है? बाइलैटरल सिमेट्री है। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या बताया था मैंने? कैन एनीबॉडी टेल मी? टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हाफ, बट वो कौन से प्लेन में कट होगा? तो कैसे भी कट करूंगी तो मुझे 2 इक्वल हाफ मिलेगा। नहीं मैम, नो वो मैम, नो मैम, बीच में से कट करेंगे तभी। वर्टिकली। वेरी गुड, वर्टिकली कट करेंगे तभी Yes, हमें ma'am. 2 इक्वल हाफ। यस, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो नहीं मिलेगा। मिरर इमेज, आई कैन से मिरर इमेज मिलेगा। यस, सो दे आर वेरी गुड बच्चा, ऑल ऑफ यू। सो दे आर bilaterally symmetry. Okay, next the body is dorso-ventrally flat. अब इसका मतलब क्या हुआ? डॉर्सल का मतलब कौन सा साइड होता है बेटा? डॉर्सल मतलब कौन सा साइड? आगे के पीछे? बैक, पीछे वेरी गुड। और वेंट्रल मतलब कौन सा साइड? आगे का आगे वाला। साइड। आगे का ओके, साइड। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द बायो, बिकॉज ये सारे टर्म्स अब आपको समझ में आने लगे हैं। वेरी गुड बेटा, ये सारे टर्म्स आप याद रखो, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल एवरीवेयर। ओके, सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट का मतलब है आगे से और पीछे से इनका बॉडी कैसा है? फ्लैट बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलो मुझे कौन बताएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब? 3 germ layers. 3 germ वेरी layers. गुड, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 3 germ layer, तीनों germ layer से बने हैं। Ecto, वेरी गुड, meso and endo. शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज द यूसिलोमेट। अब इसका मतलब क्या है? अब गायब हो गया आवाज, क्यों? बोलो 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 जल्दी से। यूसिलोम का मतलब क्या होगा बच्चा? यूसिलोम का मतलब Body. है सीलोम है, सीलोम है बॉडी में, करेक्ट ना? Cavity, इनके body पास cavity. Body वेरी cavity. गुड, बॉडी कैविटी है इनके पास, ट्रू सीलोम है, क्योंकि इनके पास भी एलिमेंट्री कैनाल है। सीलोम हम कब बोलते हैं? जब एलिमेंट्री कैनाल रहता है। तो इनके पास भी, हम अभी पढ़ेंगे बाद में, इनके पास भी एलिमेंट्री कैनाल होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट इज ट्रूली सेगमेंटेड, सेगमेंट्स भी बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, now body cavity is called as हेमोसील। हेम का मतलब क्या होता है बेटा? Blood. शाबाश। हेमोसील क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। कैसे टाइप का सर्कुलेशन है? ओपन टाइप का। तो जिसके भी पास ओपन टाइप का सर्कुलेशन रहता है, तो जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, दे आर डिप्ड इनसाइड द ब्लड। yes, they don't have the arteries, veins and capillaries, और पूरा का पूरा जो ऑर्गन होता है ना, वो पूरा डूबा हुआ होता है ब्लड के अंदर। तो क्योंकि कॉकरोच के पास भी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके लिए उसके बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एज अ हेमोसील। फिल्ड विद द हेमोलिम्फ। किसने किसने आज तक कभी कॉकरोच को मारा है? Yes. आ रहा है? ओके, कौन से कलर का ब्लड दिखता है? उसका ब्लड रहता है क्या उसके पास? No. White. White, yes. White, yes, White white color का दिखता है। कुछ fluid. हाँ, वो कुछ फ्लूइड, यस, दैट कुछ फ्लूइड इज अ ब्लड ऑफ कॉकरोच। ठीक है, यस, और उसका जो ब्लड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके ब्लड में क्या नहीं है? किसके वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है बेटा, बताओ? Hemoglobin. Hemoglobin. वेरी गुड, ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, यस, सो हेमोग्लोबिन के वजह से जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो क्योंकि इनके पास, इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं है, वो पिगमेंट नहीं है, इसकी वजह से इनका ब्लड कैसा है? व्हाइट कलर का है।
तो ऐसा ब्लड जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं है और क्योंकि ब्लड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, वैसे ब्लड को हम बोलते हैं हेमोलिम्फ. वी आर कॉलिंग इट एज अ हेमोलिम्फ. सो नोट डाउन, हेमोलिम्फ का मतलब होता है व्हाइट ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जो बिना कलर का है, कलरलेस है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कलरेशन. कलरेशन कौन से कलर का दिखता है बेटा? ग्लिस्टिंग, थोड़ा चमकने वाला ब्राउन. ग्लिस्टिंग ब्राउन कलर का है, या फिर रेड कलर का भी हमें देखने के लिए मिलता है. मीन्स रेडिश ब्राउन से लेके ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर के भी होते हैं. ठीक है, दोस्तों देर आर varieties, there are thousands of species of cockroach. बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, छोटे कॉकरोच से लेके बड़े कॉकरोच तक. हाँ, अलग अलग स्पीशीज होते हैं. कुछ स्पीशीज एकदम छोटे साइज के होते हैं, कुछ स्पीशीज बड़े साइज के होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ थोड़ा ब्लैकिश टिंच में होते हैं. सो देयर आर मेनी thousands of species of the cockroach. Is that very clear to all of you, beta? Yes. Now let us learn the next part, that is the coloration. भी हो गया हमारा समझ के. Now let us learn about the exoskeleton. Exoskeleton का मतलब क्या होता है? जो skeleton body के बाहर present है, that is called as a exoskeleton. ठीक है. Now exoskeleton की अगर हम बात करेंगे तो ये जो, क्योंकि इसके पास endoskeleton तो है ही नहीं ना, एंडोस्केलेटन नहीं है तभी तो ये नॉन कॉर्डेट एनिमल है ना. यस, बिकॉज इट डज नॉट हैव एंडोस्केलेटन, देयरफॉर इट्स अ नॉन कॉर्डेट एनिमल. ओके, नाउ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड विद द एक्सोस्केलेटन व्हिच इज हार्ड. कैसा है एक्सोस्केलेटन? हार्ड है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वैक्सी है, टफ है, नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड से बना है. नॉन लिविंग एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. प्लीज मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. किस चीज से बना है? सो एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड. नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड, that is the chitin. Please mark it as an important question both for the NEET as well as for the this thing. Okay. Next, chitin provides strength, elasticity, and surface area for attachment of what? For the attachment of the एक बार muscles. रिपीट करो ना मैम. किससे कौन बना सा है? पॉइंट बच्चा? किस एक्सोस्केलेटन किससे बना है? ये देखो ना बच्चा, ये आप टेक्स्ट बुक, यू कैन सी द टेक्स्ट बुक ना बेटा, ऑल ऑफ यू. Yes. ma'am, See that? yes. Okay, so I'm saying the point from the textbook itself, bacha. Can you see? Have you opened your textbook, bacha? Yes, yes. Sarthak, beta, Yes. please see. I am moving the cursor over here. It is, you just mark it. Yes, Mila ma'am. aapko? Yes. So the same thing I am repeating, which has been given in the textbook. See, this lesson I have told you, it's a very simple lesson. जहां जहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, that time I will tell you. ठीक है, rest other thing is been given in your textbook nicely and properly. So exoskeleton is made up of nitrogenous polysaccharide called as the chitin. Now each body segment of cockroach is covered by 4 chitinous plate. Again, important question. Important question. Mention the chitin plates of cockroach. Mention the chitin plates of cockroach. So what are they? There are 4 plates. How many plates? 4 plates. ये 4 plates कैसे divided है? Let us see. Dorsal side में टर्गम. डॉर्सल साइड में जो प्लेट है उसको हम नाम देते हैं टर्गम. वेंट्रल साइड में जो है उसको बोलते हैं स्टर्नम. और जो लैटरल साइड है, लैटरल का मतलब है जो बाजू में, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसको हम बोलेंगे लैटरल. ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज अ लैटरल साइड. तो 2 प्लूरॉन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में प्लूरॉन, एक राइट साइड में प्लूरॉन. ये 2 हो गए. वेंट्रल साइड में स्टर्नम और डॉर्सल साइड में टर्गम. So please remember these terms. Please remember this term and mark it as important.
आपको क्या याद रखना है? डॉर्सल है तो टर्गम, वेंट्रल है तो स्टर्नम और लैटरल है तो प्लूरॉन। आपको ये चीज याद रखना है। डॉर्सल है तो टर्गम, वेंट्रल है तो स्टर्नम और लैटरल है तो प्लूरॉन। प्लूरॉन। ठीक है, ऐसे 3 जगह में 4 प्लेट्स प्रेजेंट है। जगह 3 है पर प्लेट्स 4 है। अब अगर हम बॉडी के डिवीजन की बात करेंगे तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हेड, देन नेक तो नहीं है ना अभी, इसका थोरैसिक रीजन है। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। So body is divided into head, thorax, abdomen. So underline head, thorax and abdomen. ठीक है, हेड कैसा है? हेड is attached at right angle to the thorax by a thin, narrow neck, movable neck. कॉकरोच के नेक को क्या बोलते हैं? डैश। कॉकरोच का नेक is called as cervix. अंडरलाइन, कॉकरोच के नेक को हम बोलते हैं cervix. Underline all of you in your textbook. यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इन योर। आप अभी से इसका प्रैक्टिस करो बिकॉज टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आई होप सबने इतना मार्क किया। Yes. Yes. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर अ न्यू वन। So now all of you can see the PPT. You can see a सुंदर सा cockroach also, है ना? Yes. Morphology and anatomy of cockroach we have to learn. So you can see it is belonging to the phylum Arthropoda, class is Insecta, and the species scientific name of cockroach is Periplaneta americana. These many points we have already seen. Just have a look all of you. एक बार PPT में देखो पूरा points. यहाँ तक अभी तक मैंने आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाया। Just have a look. You can see the size also mentioned. So dorsal plates को हम क्या बोलते हैं? टर्गाइड्स भी बोलते हैं, वेंट्रल को स्टर्नाइड्स भी बोलते हैं और साइड वाले को प्लूरॉन्स या प्लूराइड्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, and the body is divided into 3 region as the head, thorax and the abdomen. So you can see now we are going to learn कि head में क्या क्या चीजें हैं, thorax में क्या क्या चीजें हैं और abdomen में कितने segments हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। what we have to learn कि head comprises of what all things, thorax में क्या क्या चीजें होती है और abdomen में कितने segments होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे segments आपको नजर आ रहे हैं। तो everything we have to learn in the external characteristics. अगेन आप यहाँ पे हेड का जूम किया हुआ डायग्राम देख सकते हो। दिस इज द साइड व्यू। आप क्या क्या देख सकते हो? चलो मुझे बताओ, व्हाट कैन यू सी इन द डायग्राम? टेल मी, क्या क्या चीजें प्रेजेंट आप देख पा रहे हो हेड में? Eye. Antenna. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आईज देख पा रहे हो, एंटीना देख पा रहे हो, और क्या देख पा रहे हो? माउथ पार्ट्स। ठीक है, माउथ Yes. पार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आईज की बात करूंगी तो ऑब्वियसली हमने देखो किंगडम एनिमेलिया पढ़ा था। तो किंगडम एनिमेलिया में हमने देखा था कि ऑर्थ्रोपोडा के पहले का कौन सा फाइलम होता है? एनेलिडा। Yes. तो एनेलिडा के Annelida. पास तो आईज तो था ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमें आईज जैसा कुछ तो नजर आ रहा है एनिमल के अंदर। तो ऑब्वियसली द आईज विल नॉट बी सो वेल डेवलप्ड। तो इतना वेल डेवलप्ड तो आईज नहीं है कि मतलब हमारे जैसा तो इसको दिखाई नहीं देता है।
बट वी विल सी कि कैसे आईज का फॉर्मेशन या शुरुआत हुआ था, कि कैसे आईज बनने को तैयार हुआ था। तो eyes in case of the cockroach is been called as, you can see in the diagram over here, it is called as a compound eyes. क्या बोलते हैं इसको? compound eyes. eyes. अच्छा, अब अगर आप एंटीना को भी देखोगे तो एंटीना आपको ऐसे सीधा लाइन नजर नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स हैं, है ना? आप Yes. देख सकते हैं बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स नजर आएंगे आपको एंटीना के अंदर, और इसके पास माउथ पार्ट्स है। तो ये जो बाजू का आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये उसके सारे माउथ पार्ट्स है। माउथ पार्ट्स में उसका अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है, उसके पास भी टंग होता है, उसके पास भी दांत होता है, और एक सपोर्टिंग जॉज होते हैं। तो एवरीथिंग वी लर्न इन डिटेल, ठीक है? सो लेट अस से हाउ द हेड इज। सो हेड कैसा है? यू कैन सी द डायग्राम। द हेड इज ट्रायंगुलर, formed by the fusion of 6 segments. 6 सेगमेंट्स जुड़कर उसका एक हेड बना है, ट्रायंगुलर हेड बना है। हेड जो है वो अपने हेड को राइट एंड लेफ्ट घुमा सकता है। जैसे हम अपने हेड को राइट एंड लेफ्ट घुमा सकते हैं, वैसे वो भी हमारे अपने हेड को राइट एंड लेफ्ट घुमा सकता है, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल नेक है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। हेड में होता क्या क्या है? हेड में 2 एंटीने हैं, सो पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने हैं, 2 एंटीने हैं। 2 आईज है, दैट इज कंपाउंड आईज, सो पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। अलग अलग देखो, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप का माउथ पार्ट होता है। जैसे अगर आप मॉस्किटो की बात करोगे तो मॉस्किटो क्या है? सैंजियोवरस है, मतलब ब्लड सक करता है ना, तो उसके पास जो माउथ पार्ट है वो सकिंग टाइप का माउथ पार्ट है, ठीक है? तो अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं। वैसे कॉकरोच में कौन से टाइप का माउथ पार्ट है? चूइंग टाइप, मतलब वो चू भी कर सकता है फूड को, और बाइटिंग टाइप का भी माउथ पार्ट है, चूइंग एंड बाइटिंग टाइप का माउथ पार्ट है, ठीक है? नाउ माउथ पार्ट्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? तो माउथ पार्ट्स में होता है लैब्रम, यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर, लैब्रम which is called as the upper lip, upper lip. Next है mandibles, mandibles देखो इधर और इधर है। नेक्स्ट है हाइपोफैरिंग्स, जो बीच में है, जिसको हम टंग बोलते हैं कॉकरोच का। Yes, I think so. There was some network issue, beta. So all of you can see the textbook now. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो let us first learn about the antennae. एंटीने का काम क्या है और एंटीने दिखता कैसे है? So very important point again which can be asked for MCQ is antennae are also called as dash. So they are also called as a feelers. Feelers का मतलब से हमें समझ में आता है जिससे वो फील कर सकता है, जिससे वो जान सकता है कोई चीजें।
तो दे आर फिलामेंटस, फिलामेंटस है, लॉन्ग है, सेगमेंटेड है, ठीक है, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. Okay. When we talk about the antennae, we can see that the antennae they are present in a pit. Pit मतलब एक खड्डा है, खड्डे के जैसा है, उसके अंदर ये antennae present है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Antennal socket बोलेंगे, antennal socket. ठीक है? So they are pit, they are lodged. Lodged मतलब अंदर हैं, lodged into the pit, and that is called as the antennal socket. What is the use of this antennae? They are tactile organ. Tactile का मतलब होता है it is an organ of touch, as well as they are the organ of olfaction. Olfaction मतलब olfactory का मतलब क्या होता है? Sense of smell. अभी देखो इसके पास nose तो नहीं है, ठीक है, और इसके पास आईज भी, तो अभी शुरुआत हुई आईज की, तो इसके पास इतना अच्छा आईज भी तो नहीं है. तो ये कैसे अपने फूड को लोकेट करेगा? तो वो अपने फूड को लोकेट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स एंटीने. मतलब वो एंटीने को मूव करके अच्छे से स्मेल कर सकता है और वहां तक पहुंच सकता है जहां पर फूड प्रेजेंट है. दैट वेरी क्लियर बेटा? सो एंटीने का Yes. काम क्या है? एंटीने का वर्क इज olfaction as well as touch. Tactile and olfaction. It is useful for locating the food in the vicinity. Next have fenestrae. Now you can see the fenestrae also. Okay, fenestrae has not been shown in the diagram. The fenestrae are also called as the ocellular spots. Where they are present, when you see an actual cockroach, they are present at the base of the antenna. They appear as a white spot. The function of this fenestrae is non-known. It is not known yet, but it has been told that it helps in the what? Antennae function only. Antennae के काम में help करता है. It is a just a what to say? ऐसा लगता है लोगों को, पर actual function of the fenestrae is not known yet. It is appearing like a white spot. Now, very important again is the compound eyes. So, compound eyes are dark, paired, kidney shape का है, kidney shape का है. Now, see the eyes, all of you, है ना? कैसा दिख रहा है आपको? Eyes कैसे दिख रहा है? Dark है, kidney shape का है, ठीक है? On both the side of the head में present होते हैं. Now, speciality of this compound eye is the compound eyes are made up of very, very, very important. Please mark it in your textbook. They are made up of hexagonal facet. क्या बोल रही हूँ मैं? Hexagonal facet. Hexagonal facets called as the ommatidia या ommatidium. Please note down all of you. The eyes are made up of hexagonal facets called as the ommatidium या ommatidia. हर एक ommatidia will act as a simple eye. कैसे काम करता है बेटा? सिंपल आई के जैसा काम करता है. इसके लिए जो कॉकरोच का इमेज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द कॉकरोच इमेज प्रोड्यूस आईज प्रोड्यूसेस अ मोजाइक इमेज. मोजाइक इमेज का मतलब क्या है? देखो, जब भी कॉकरोच कोई चीज को देखता है तो उसको वो चीज पैच पैच में नजर आता है. जैसे हम एक चीज को देखते तो हमें तुरंत पूरा इमेज नजर आ जा रहा है, बट कॉकरोच को ऐसा नजर नहीं आता है हमारी तरह. कॉकरोच को जब भी वो कोई चीज को देखता है तो उसको वो पैच पैच में नजर आता है, क्योंकि ये ओमैटिडम, हर एक ओमैटिडम विल एक्ट एज अ सिंपल आई. तो क्योंकि हर एक ओमैटिडम अपना अपना काम कर रहा है तो उसको पैच पैच में नजर आता है कोई भी चीजें, और फिर थोड़े सेकंड के बाद उसको सारे ओमैटिडम का इमेज एक साथ ज्वाइंट होता है और उसको एक ब्लर इमेज नजर आता है. उसको एकदम साफ नहीं दिखता, उसको एक ब्लर इमेज नजर आता है. तो ऐसे इमेज को जो पैचेस में फॉर्म हुआ है और थोड़ी देर में ब्लर नजर आता है, ऐसे इमेज को हम बोलते हैं मोजाइक इमेज. समझ में आया बेटा?
तो अगेन यू कैन सी दैट बिकॉज शुरुआत है आईज का, तो भी शुरुआती दौर में भी आईज इमेज दिखा रहा है वो, नो डाउट द इमेज इज नॉट क्लियर, इट इज अ ब्लर इमेज। आई होप सबको समझ में आ गया। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। The compound eyes are made up of hexagonal facets. Hexagonal facets है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं omatidum। Okay, I was mute only, sorry. Again, I am repeating with all of you. Labrum. Labrum क्या है? It is the upper lip. It is single flap-like structure. So underline single flap-like. Underline all of you, single flap-like. And what is the function of labrum? It is useful in holding the food. Useful in holding the food. Mark it. क्या क्या मार्क करोगे लैब्रम में? अपर लिप को अंडरलाइन करोगे, सिंगल फ्लैप लाइक को अंडरलाइन करोगे, और नेक्स्ट उसका फंक्शन अंडरलाइन करोगे, दैट इज यूजफुल इन होल्डिंग ऑफ फूड। किया सबने इतना? Yes. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रू जॉज। उसके ट्रू दांत, मतलब अभी हमने बोला ना कि उसके पास बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का दांत है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि उसके पास चूइंग टाइप का दांत है, मतलब कि कुछ तो दांत के जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना जो चू कर सकेगा। तो मैंडिबल्स आर द ट्रू जॉज। मैंडिबल्स आर द ट्रू जॉज, मतलब जो चबाने में मदद करता है, फूड को चबाने में जो मदद करता है, दे आर द मैंडिबल्स। अब अगर ये चबाने में मदद करता है, मतलब कि ये कैसा होना चाहिए? विथ सेरेटेड मार्जिन होना चाहिए। सेरेटेड मार्जिन का मतलब क्या होता है बेटा? नाउ सी द डायग्राम, आई विल शो यू। देखो ये मैंडिबल्स है, देखो कैसा है, रफ है, ऐसा जैसे कारपेंटर के पास सॉ होता है ना, सॉ के जैसा दिख रहा है ना। तो सॉ के जैसा रहने की वजह से, सेरेटेड मार्जिन होने की वजह से ये फूड को आसानी से क्या कर पाता है? ग्राइंड कर पाता है। नो डाउट इतने अच्छे से नहीं कर पाता, बट फिर भी काम चलाऊ हो जाता है ग्राइंडिंग। फिर आप मुझे पूछोगे कि बाकी का ग्राइंडिंग किधर होता है, तो हम पढ़ेंगे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक ग्राइंडर है जिसका नाम होता है गिजार्ड, वहां पे पूरा ग्राइंडिंग होता है फूड का। ठीक है, ओके। सो थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग कौन करेगा? ये मैंडिबल्स करते हैं। तो मैंडिबल्स के बारे में आप क्या अंडरलाइन करोगे? दे आर द ट्रू जॉज। दे आर द ट्रू जॉज विथ सरेटेड मार्जिन। सरेटेड का मतलब समझाया मैंने बेटा आपको। सरेटेड का मतलब क्या होता है? जिगजैग। जिगजैग मार्जिन्स है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं सेरेटेड मार्जिन्स। ठीक है,
क्या काम है इसका? काम क्या है? अंडरलाइन करो. इट इज यूज्ड फॉर cutting and crushing the food. Used for cutting and crushing the food. So this movement is effected with the help of adductor and abductor muscle. Please underline. ये दो मसल्स हमारे पास भी होते हैं. Yes. ये मसल्स अपोजिट काम करते हैं. So this muscles के मदद से क्या होता है? वो फूड को च्यू कर पाता है. Done all of you. मैंडिबल्स में क्या क्या अंडरलाइन किया बेटा आप लोगों ने? ट्रू जॉज अंडरलाइन किया. टू हार्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर अंडरलाइन किया. Then यूज फॉर कटिंग एंड क्रशिंग. एंड ये मूवमेंट किसके कारण होता है? मसल्स के कारण होता है. विच आर द मसल्स? एबडक्टर एंड द एडडक्टर मसल्स के कारण होता है. नेक्स्ट आता है मैग्जिले. ये मैंडिबल तो हो गया जो ट्रू कटिंग करता है, पर ये मैग्जिले इसको हेल्प करता है. इसके लिए हम इसको बोल रहे हैं एक्सेसरी जॉज. सो पोजीशन किधर है? ये कहां पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मैंडिबल्स. बिहाइंड द मैंडिबल्स प्रेजेंट है. ठीक है. हर एक मैंडिबल के अंदर कौन कौन से रीजन्स होते हैं? कार्डो, स्टाइप्स, गैलिए, लैसिनिया एंड मैक्सिलरी पल्प्स. इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट. ये सारे आपको, ये देखो मैक्सिले को अलग करके दिखाया है. तो मैक्सिले के अंदर आप देख सकते हो अलग अलग रीजन्स हैं. सो कार्डो, स्टाइप्स, गैलिए, ठीक है, लैसिने, एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये बाहर निकला हुआ जो दिख रहा है, दिस इज द मैक्सिलरी पल्प. ये जो बाहर निकला हुआ आपको दिख रहा है ना मूंछ के जैसा, दिस आर द मैक्सिलरी पल्प. और ये जो बाकी का पार्ट है वो यहाँ पर अंदर है. सो प्लीज अंडरलाइन द टर्म्स एंड द नेम्स. एग्जाम में अगेन कैन बी आस्क्ड, write down the parts of the maxillae. So they are cardo, stipes, galliae, laciniae and the maxillary pulps. Again maxillary pulp जो है वो क्या है? tactile है. tactile means organ of touch. So it helps the hold the food, help the mandible and for help for mastication. mastication का मतलब क्या होता है बेटा? chewing के लिए मदद करता है. It is also used for cleaning the antennae and the front leg. आपने देखा होगा जब भी कॉकरोच रिलैक्स होता है ना तो अपने मैक्सिलरी पल्प से अपना क्लीनिंग भी करता रहता है. I don't know how many of you have observed the cockroach from near. इतना ध्यान से किसी ने कॉकरोच को देखा है क्या? ठीक है. Yes. Okay. So they are cleaning also with the help of this maxillae. Next is the labium, that is the lower lip. So lower lip का क्या काम है? It also has a labial pulps. जैसे maxillary pulps होता है वैसे labial pulps भी होता है. They are sensory in function, so underline their sensory in function. They are useful in pushing the food into the esophagus or the preoral cavity. And it also prevents the loss of food from falling down during chewing. So what are the functions of the labium or the lower lip? सबसे पहला, it is sensory, underline sensory. It helps in pushing the food. It also helps in preventing the falling down of food during chewing. Okay? And the last one is the hypopharynx. Hypopharynx is called as a tongue of the cockroach. So you can see the diagram also. It is cylindrical, single structure. Hypopharynx can also be called as dash. So it is can also be called as a lingua. So please underline. ये लिंगुआ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोम्ब के जैसे प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एंड विच आर कॉल्ड एज अ सुपर लिंगुआ. एंड इसका काम क्या है? यूजफुल इन
Process of feeding and mixing of saliva with the food. Yes, cockroach also have a salivary gland. So, tongue क्या करता है? जैसे हमारे केस में टंग क्या करता है? It helps in the mixing of saliva. वैसे ही कॉकरोच के भी बॉडी में mixing of saliva का ही काम होता है. Is that very clear to all of you, bachcha? So today we have learned the external things and we have learned the head region of the cockroach. Got it, all of you? Any doubt till now? Any doubt? No. Okay. So homework for all of you is to write down the habitat, to write down the systematic position. जो भी मैंने पढ़ा है वो सब आपको लिखना है. And you have to draw the diagram of mouth parts of cockroach. That is figure 11.4. Figure 11.4. This diagram you have to draw. All of you have to draw this diagram. In the next class, I will see everybody's book and this diagram also. Is that very clear to all of you? Yes. Yes. Okay. So I hope now we can stop also because